اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور قربی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے فضل کیا اور ہمیں یہ آزادی دی کہ ہم تجھے اپنا باپ کہہ کر پکار سکیں۔ اور تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، اور تیرے بیٹے یسوع نے بھی یہ کلیم کیا، یہ دعویٰ کیا کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اے باپ تیرا تخت یہاں پر لگا ہے، کیونکہ تو اپنی حمد پر تخت نشین ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی حضوری کے وسیلے سے یہاں پر موجود ہر ایک شخص کو برکت دے، ہر ایک جان تیرے پاک روح سے معمور ہو جائے۔ پاک روح کی معموری ہمیں خداوند ستائش کے لیے، کلام کو سننے کے لیے اور ایمان کے ساتھ تجھ سے مانگنے کے لیے تیار کر سکے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو۔ آج جتنے لوگ یہاں پر کسی تکلیف، پریشانی، دکھ کے ساتھ آئے ہیں، آج یہاں سے تسلی، اطمینان اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ واپس لوٹیں۔ خداوند جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے لیے بھی تیری برکت مانگتے ہیں۔ سبھی کو تو ایمان میں مضبوط کر، سبھی کی رہنمائی کر، اور تیرا ہاتھ سبھی پر بڑھ جائے اور یسوع کے نام سے سبھی لوگ برکت پائیں۔ یہ عبادت یسوع کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ خداوند آج پوری دنیا میں جہاں بھی ایماندار جمع ہوئے ہیں تاکہ عبادت کی جا سکے، دعا کرتے ہیں خداوند کہ ان عبادات کے وسیلے سے صرف یسوع کے نام کو ہی جلال ملے، اسی کا نام بڑھے، ہم سب گھٹیں اور یسوع ہی بڑھتا جائے، ہماری زندگی میں جلال پاتا جائے۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی تو حفاظت کر، ہمیں محفوظ کر لے، دہشت گردی سے، شر پسند عناصر سے سبھی کو محفوظ رکھ، اور یہ توفیق بخش دے کہ پوری عبادت کے دوران ہمارے خیال اور دھیان تیری طرف لگے رہیں، دنیوی فکریں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، ہم ایمان میں مضبوط ہو کر اس عبادت میں شامل ہو سکیں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ तेरी आवाज़
اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 18 گائیں گے۔ زبور نمبر 18 تیجا حصہ آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے مینو رب بچاوے گا۔ زبور نمبر 18، زبور نمبر 18 تیجا حصہ پہلا وزن، آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے مینو رب بچاوے گا۔ زبور 18۔
تشریف رکھیں. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں رشکین جوان صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. ہم خدا کا شکر کریں گے، خدا نے فضل کیا اور آج ہم عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہو سکے ہیں، اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اس کا شکر کریں گے اور دعا کریں گے خداوند ساری کلیسیا کو ایمان میں مضبوط کرے، ہمیں ایک زندہ گواہی دینے والی کلیسیا بنائے. ایف سی کالج کے لیے ہم خدا کا شکر کریں گے، خداوند نے یہ ادارہ قائم کیا تاکہ اس کے وسیلے سے پاکستان میں تعلیمی میدان میں ترقی ہو سکے، مسیحوں کے لیے مواقع تعلیم کے پیدا ہو سکے. دعا کریں گے خداوند اس ادارے کو برکت دے، اس ادارے کو چلانے والے تمام انتظامی افسران، فیکلٹی اور سٹاف جو یہاں پر کام کرتا ہے، خداوند انہیں بھی برکت دے اور ان کے وسیلے سے اس یہ ادارہ اور زیادہ ترقی کرے. ہم پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے، ہم پاکستان کی ترقی اور امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے. خداوند ہمارے ملک میں امن کو بھی قائم کرے، خداوند ہمارے ملک میں سلامتی بخشے اور ہمارا ملک ترقی کر سکے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. ہم خدا کی حضور کو محسوس کریں، اس کے سامنے سر رسول ہوتے ہیں. خدا یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور زندگی میں خدا تو نے ہمیں تندرستی، سلامتی، خوشحالی بخشی کہ ہم خداوند تیرے گھر میں آ سکیں اور خداوند تیرے نام میں چھپ سکیں اور خدا تجھے دھنیواد کر سکیں. اس اعزاز کے لیے، اس استحقاق کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا آج کا دن خدا جب کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، خدا اپنی اپنی گزارجات کے ساتھ تیرے سامنے سربسود ہیں. خدا اس وقت خدا یہاں پر موجود ایک ایک شخص کے لیے خدا تجھ سے محنت کرتا ہوں کہ خدا جس گھر سے خدا وہ تیرے گھر میں آئے ہیں تو خدا ان کو سلامتی، خوشحالی، تندرستی بخش کروں. اے باپ رحیم، اس کے ساتھ ساتھ اس کیمپس کے لیے خدا تجھ سے محنت کرتا ہوں جہاں پر ہم موجود ہیں. اور خدا یہ کیمپس ایف سی کالج تیرے نام کے لیے، تیرے کلام کے خدا پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے. خدا اس کو تیری خاص برکت چاہتے ہیں. خدا اس ادارے کو تو اسی طرح قائم و دائم رکھ تاکہ یہ ادارہ تیرے نام کی حمد و ثنا کے لیے، خدا تیرے نام کے پرچار کے لیے اس طرح سے کام کرتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ خدا اس ایف سی کالج کے لیے خدا جہاں پر خدا لوگ کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، خدا تجھ سے محنت کرتا ہوں کہ خدا تو اس ایف سی کالج کو اسی طرح قائم کر خدا تاکہ یہ ادارہ جو خدا تعلیمی طور پر خدا کام کرتا ہے، یہاں پر پڑھنے والے اور کام کرنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہو. خدا فیکلٹی کے ایک ایک ممبر کے ساتھ ہو. خدا نیچے سے لے کے اوپر تک کے تمام سٹاف ممبران کو خدا تو سنبھالے رکھ اور یہ ادارہ اسی طرح خوبصورتی سے اپنا کام کرتا جائے اور خدا تیرا نام عزت اور جلال پاتا جائے. خدا اسی طرح جہاں جہاں پر آج عبادت ہو رہی ہیں، ان تمام چرچز کو، ان تمام جگہوں کو ہم خدا تیرے نام میں مخصوص کر دیتے ہیں اور خدا تیری پناہ خدا تو ان تمام جگہوں پر خدا اپنا پاک روح کا پہرا اسی طرح خدا رکھتے تاکہ لوگ امن کے ساتھ اور خدا آشتی کے ساتھ اور آسانی سے خدا تیرے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے جمع ہو سکے. ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کے خدا مشکل حالات
उन जगहों से दूर कर दे ताकि लोग आराम के साथ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस ठहरे। खुदावन इसके साथ साथ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ जहाँ पर हम आज़ादी के साथ तेरे नाम को खुदावन लेते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं। ऐसे बहुत से इलाके, ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ये आज़ादी, ये आसानी नहीं है। खुदावन उन ममालिक पर, उन जगहों पर खुदावन तेरा रहम और तेरा करम चाहते हैं। तो खुदावन लोगों के जहनों को बदलने में कुदरत रखता है। खुदावन उन इलाकों पर खुदावन इस तरह के हालात पैदा हों, उन ममालिक में ऐसे हालात पैदा हों कि लोग तेरे नाम को आसानी दूसरे के साथ बांध सकें और तेरा नाम खुदावन दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। खुदावन जहाँ पर जंग जदल है उन ममालिक में खुदावन तेरी सलामती और खुदावन तेरा अमन चाहते हैं। अब आप इसके साथ साथ तमाम तालीमी, तिब्बी, इशाती इदारों के लिए जो तेरा नाम और निशान रखते हैं उन पर तेरी खास बरकत चाहते हैं। खुदावन उन इदारों के वसीले से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और खुदावन तेरे लोग तेरे खेत में इसी तरह काम करते रहे। तमाम खादमीन के लिए खुदावन तुझसे बरकत चाहते हैं, खासतौर पर अपने कौसे के लिए खुदावन जो तेरी कलीसिया की निगरानी बड़ी खूबसूरती से कर रहा है। खुदावन अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावन उसको अपने कलाम के गहरे भेद अनायत कर ताकि वो तेरे कलाम की तस्वीर तेरे लोगों के साथ खूबसूरती से बयान कर सके। उसके खानदान को तेरी खास बरकत चाहते हैं। अब आप रहीम एक बार फिर खुदावन इस आयत में मौजूद एक शख्स के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ और खुदावन पूरी इबादत में तू हमारे साथ हो। कोई मुश्किल, कोई परेशानी खुदावन हमारे सामने लाना पड़े। खास तौर पर खुदावन इस वायरस के लिए तुझसे दुआ करता हूँ जिसकी वजह से खुदावन पूरी दुनिया परेशान है। खुदा मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर हालात खराब हैं, तो भी खुदावन हमारा ईमान और यकीन सिर्फ तुझ पर है और खुदावन तू सब कुछ करने में कुदरत रखता है। खुदावन हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावन इस वायरस की वजह से जो परेशानियां हैं खुदावन तो अपने लोगों को संभाल। खुदावन तमाम हालात बेहतर होते चले जाएं और लोगों की जिंदगी खुदावन एक बार फिर खुदावन आसानी से चल सके, बहाल हो सके। खुदावन एक बार फिर खुदावन तेरे नाम को और खुदावन तेरे नाम में आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदावन पूरी इबादत में हमारे साथ हो और खुदावन हमें संभाले। तेरे जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 46 गाएंगे। ज़बूर नंबर 46, ज़बूर नंबर 46। रब साडा जोर है, तिलावे साडी है बना।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। और हमारा ईमान है कि ईमानदार इकट्ठे मिलकर मुत्तफिक होकर एक दिल के साथ दुआ करते हैं तो जिंदा खुदावंद और उसका बेटा यसू जो जिसने मौत पर फतह पाई उसके जिंदा होने के वसीले से ईमानदार फतह पाते हैं। इसलिए हम बड़े ईमान के साथ अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। और हमारा ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। आए हम सभी इस ईमान में अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदा काबिल मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसके वसीले से हम फतह पाते हैं। यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है। और तेरा कलाम ये कहता है और हम इस पर ईमान रखते हैं कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। तेरा शुक्र खुदावंद यीशु के लिए जिसके नाम में हम शिफा पाते हैं, मौजज़ात लेते हैं। बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम सभी अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, यहाँ पर मौजूद हर एक और जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं वो भी तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत में पाक हो जाए। हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। तेरा मुआजिजा खुदावंद मांगते हैं, तू छू खुदावंद, तो हम में से हर एक को छू और हमारी हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तेरा मुआजिजा खुदावंद हम चाहते हैं, तेरा मुआजिजा अपने लिए मांगते हैं। हमारी जिंदगी में मुआजिजा कर, हमारी हर एक बीमारी को, दर्द और तकलीफ को तो अपने बेटे यीशु के नाम से खत्म कर दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद तू हर एक को छू और शिफा दे। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं नासिर साहब के लिए, विक्टर साहब के लिए, बहन फौजिया के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई नदीम के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, मिसेज सरवर के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से मिसेज नजीजियाई के लिए दुआ करते हैं, भाई फिलिप के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा बख्श दे। भाई आसफ रशीद के लिए भी शिफा मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से। जितने नाम हमने तेरी हुजूरी में पुकारे हैं खुदावंद तूने छू और शिफा दे, उनकी जिंदगी में मुआजिजा कर ताकि हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तू खुदावंद रहम कर। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए भी तेरी बरकत को मांगते हैं। तूने छू और खुदावंद में औलाद की बरकत बख्श दे, तेरी मेरास सुने मिले। खुदावंद तू बरकत दे। खुदावंद कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम खत्म हो जाए। कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए शिफा। खुदावंद दुनिया को फतेहमंद बना और खुदावंद तेरे बेटे यीशु का नाम आजादी के साथ लिया जा सके, लोग इबादत के लिए आजादी के साथ आ सके, लोग अपनी मुआशी सरगर्मियों को शुरू कर सके। खुदावंद तू दुनिया को बहाल कर। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक जरूरी ऐलानात हैं और आपके गुज़ार करना चाहता हूँ। गुज़श्ता अखबार भी हमें दरख्वास्त की कि वैक्सीनेशन जो है उसको ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीनेशन जो है ये खुदावंद का फजल है, ये दुआओं का नतीजा है। क्योंकि जब इस वबा का आगाज हुआ तो उस वक्त ये बड़ा खौफ था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि बड़ी दुआओं के बाद खुदावंद ने फजल किया और ये मुमकिन हो सका कि वैक्सीनेशंस बन सकें। मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीनेशंस बनी हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि वैक्सीनेशन से
ये जो कोरोना है उसका जो उसकी शरह है बढ़ने की वो भी कम हो गई है। और मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग इसको ज़रूर लगवाएं। इसमें डर खौफ की कोई बात नहीं है, ना ही ये हमारे ईमान के खिलाफ है, क्योंकि बहुत से लोग इसे ईमान के खिलाफ भी समझ रहे हैं। तो ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये ना तो इससे हमारा ईमान कमज़ोर होता है, ना ही हमारे ईमान के खिलाफ है, ना ही इसमें कोई चित का मामला है। मैंने बहुत पहले लगवा ली है। तो आप सब लोगों को भी मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। इससे हम अपने आप को भी महफूज करते हैं और दूसरों को भी महफूज बनाते हैं। और ख़ासतौर पर ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमने अपनी बॉडी की हिफाजत करनी है। ये हमारे मसीही ईमान का हिस्सा है कि मसीही ईमानदार अपने जिस्म की हिफाजत करता है, उसको बीमारियों से, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से महफूज रखता है, रखने के लिए खुद कोशिश करता है। इसलिए वैक्सीनेशन जो है ये इसको लगवाना अपने आप को महफूज करना है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि ईमानदार अपने आप को महफूज करता है। इसलिए ज़रूर इसको लगवाएं ताकि आप दूसरों के लिए भी सेफ्टी का बायस हो। ये खुदा उनके फजल से मुमकिन हुआ है। और आज हम शायर बानी की इबादत में भी शामिल होंगे और उसके ज़रिए से खुदावन की मेज़ पर आएंगे। हम गुज़श्ता 1.5 माह से खुदावन की मेज़ से दूर रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि आज हम दोबारा से इकट्ठे हो सके हैं और आज खुदावन की मेज़ पर भी आएंगे ताकि हम उससे बरकत पा सकें। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। आज की तलावत ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 121, साम 121, पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब और उसमें से 121वां ज़बूर, साम 121। कलाम मुक़द्दस की तलावत के लिए हम सब खड़े होंगे और इस तलावत में हमारा रहनुमाई बेटी सारा हारून करेंगी। ज़बूर 121, साम 121। खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावन से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघेगा नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरे साहिबान है। न आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुंचाएगा, न महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। हम इसी तरह दुआया रूह में खड़े होकर खुदावन की तारीफ में गीत गाएंगे। गीत नंबर 374। ये मैंने नंबर सही बताया? 374 है? 354, माफ कीजिएगा, 354, 354। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। गीत नंबर 354, 354। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा मैं बेटे यीशु का किया वो वादा पूरा किया और पाक रूह को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो हमारी रहनुमाई करे और पाक रूह के वसीले से बरकत पाए, तेरे कलाम से बरकत पा सकें, तेरे कलाम के भेदों को समझ सके और जान सके। खुदा मैं बड़े ईमान के साथ अपने आप को भी तेरे पाक रूह के ताबे करता हूं। खुदा पाक रूह तू मेरी रहनुमाई कर ताकि आज का कलाम तमाम लोगों के लिए बरकत का बायस बन सके। और खुदा जितने यहाँ पर मौजूद हैं और ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होने के लिए पाक रूह की मामूरी मांगता हूँ ताकि आज के कलाम को सुनने के लिए तैयार हो सके, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अजीजों, हम ने दोबारा से ज़बूर की सीरीज जो है उसका आगाज कर दिया हुआ है। मज़ामीर में से हम दोबारा से सीखना शुरू हुए हैं और खासतौर पर आज जिस ज़बूर की तिलावत आपके सामने की गई है ये एक मुसलसल 15 ज़बूर हैं जो कि एक ही पैटर्न पर लिखे गए हैं और उनका सरनामा एक है। 120वां ज़बूर जो है उसके आगाज में यानी उसके सरनामे में लिखा है मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत, और 120वें ज़बूर से लेकर 134वां ज़बूर जो है ये 15 ज़बूर हैं, 15 मज़ामीर हैं जिनका सरनामा एक ही है। और ये सरनामा जो है, ये जो अन्वान है इन मज़ामीर का, और बहुत से और मज़ामीर के आगाज में भी जब हम देखते हैं तो वो हमें बहुत दफा इस ज़बूर के इस्तेमाल के बारे में, इस ज़बूर के मुसन्नफ के बारे में या किस पस मंजर में ज़बूर लिखा गया उसके बारे में आगाह करता है। और ये 15 ज़बूर जो हैं 120 से लेकर 134वें ज़बूर तक, इनके लिए जो खास तौर पर जो हमें मालूमात मुख्तलिफ मुफस्सरीन के जरिए से मिलती हैं वो ये बताती हैं कि ये मज़ामीर हैकल में गाए जाते थे। हैकल में जाते हुए, हैकल की तरफ सफर करते हुए, या बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि हैकल की सीढ़ियां चढ़ते हुए, स्टेप्स को चढ़ते हुए ये ज़बूर गाए जाते थे। और हर एक स्टेप पर, हर एक सीढ़ी के कदम पर एक मजमूर जो है वो गाया जाता था। और इन ज़बूरों को, इसमें यहां पर लिखा है हैकल की ज़ियारत का गीत, और इसके लिए और जो लफ्ज़ इस्तेमाल है पिलग्रिम सॉन्ग्स यानी ज़ियारत के गीत। इसके अलावा और भी इसको सॉन्ग्स ऑफ स्टेप्स भी कहा गया, यानी हर कदम के साथ एक ज़बूर के गाए जाने वाले, इनको सॉन्ग्स ऑफ डिग्रीज भी कहा गया, यानी हर बुलंदी के साथ एक ज़बूर गाया जाना।
اور یہ 15 زبور کہا جاتا ہے کہ 15 سٹیپس اٹھاتے ہوئے جو اسرائیل کے لوگ تھے جب وہ ہیکل میں جاتے تھے تو اس وقت ان کو گایا جاتا تھا. اور یہ جو ان میں سے 15 مزامیر میں سے ہمیں جو داؤد کے مزمور ہیں وہ 2 مل رہے ہیں, اور اس کے بعد جو سلیمان کا زبور ہے, مقدس سلیمان کا, وہ 1 زبور ہے, اور اس کے بعد جو زبور 127 جو ہے وہ سلیمان کا زبور ہے. اس کے بعد باقی جو مضامین ہیں ان پر نام نہیں لکھے ہوئے کہ کس نے ان کو لکھا ہے. یہ مختلف زمانوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں. 126واں زبور جو ہے یہ بھی ہیکل کی زیارت کا گیت ہے, لیکن یہ زبور جو ہے یہ بابل اور فارس کی اسیری سے واپسی کا ہے. لیکن کچھ زبور 124واں زبور جو ہے وہ داؤد کا ہے, یعنی یہ 700 سال پہلے کا. یہ 15 زبور جو ہیں 120 سے لے کر 134 زبور تک, یہ تقریباً 700 سے 800 سال کے عرصے کو بیان کرتے ہیں, اور مختلف اوقات میں تحریر کیے گئے مضامیر ہیں جن کو اکٹھا ایک ترتیب کے ساتھ زبور کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے. اور یہ خیال کیا جاتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو اکٹھا اس لیے ایک گروپ کی شکل میں تحریر لکھا گیا, یہاں پر شامل کیا گیا ہے, کیونکہ یہ ایک گروپ کی شکل میں ہی گائے جاتے تھے. یعنی ایک ترتیب کے ساتھ ہیکل میں ان مضامین کو گایا جاتا تھا, اسی لیے زبور کی کتاب میں بھی اس کو ترتیب کے ساتھ لکھا گیا, اگرچہ ان کا وقت مختلف ہے. لکھے جانے کا جو ٹائم ہے جب یہ مضامین لکھے گئے وہ اس میں سینکڑوں سالوں کا فرق بھی ہے. مقدس داؤد نے لکھا ہے, مقدس سلیمان نے لکھا ہے, پھر اس کے بعد بحالی جب واپس آتے ہیں فارس کے دور میں اس وقت کے مضامین ہیں. یعنی یہ سینکڑوں سالوں پر محیط, سینچریز پر محیط زبور ہیں, لکھے گئے ہیں, لیکن ان کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا گیا تاکہ ان مضامیر سے ایک گروپ کی صورت میں ایک اکٹھے ترتیب کے ساتھ لکھے گئے مضامیر سے ہم برکت پا سکیں. اور ان میں سے زبور جو ہیں, یہ جو مضامیر ہیں, یہ زبور خدا پر توکل اور بھروسے کو ظاہر کرتے ہیں. 121واں زبور, 122واں زبور, 123واں زبور, اور اس کے بعد 126واں, 127واں زبور, 125واں زبور, سارے مضامیر جو ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ ایماندار خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کس طرح برکت پا سکتا ہے. آج ہم نے زبور 121 کی تلاوت سنی ہے. 121ویں زبور سے پہلے اگر 120واں زبور جو پہلا زبور ہے زیارت کے زبوروں میں سے, زیارت کے گیتوں میں سے, یعنی ہیکل میں انٹری میں داخل ہونے کے وقت جو مضامین گائے جاتے تھے ان میں سے جو پہلا زبور ہے 120واں زبور, وہ مایوسی کو ظاہر کرتا ہے, تکلیف کو, پریشانی کو ظاہر کرتا ہے, دکھ کو ظاہر کرتا ہے. 120ویں زبور میں پہلی آیت میں لکھا ہے, میں نے مصیبت سے میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا. پھر اس کے بعد گلا ہے, اے دغا باز زبان تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے. پھر اس کے بعد چھٹی آیت میں لکھا ہے, صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی, میں تو صلح دوست ہوں پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں. 120واں زبور مایوسی کو ظاہر کر رہا ہے, دکھ کو, مصیبت کو ظاہر کر رہا ہے. لیکن 121ویں زبور میں جب ہم چلے جاتے ہیں جس کی آج تلاوت کی گئی ہے, تو اس کی پہلی آیت ہی پہلے زبور کے سوال کا جواب ہے. یہ ترتیب بڑی خوبصورت ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا, میری کمک کہاں سے آئے گی, میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. 120ویں زبور کے بعد 121واں زبور ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور مصیبت, دکھ اور تسلی میں ہمیں ایک راہ دکھاتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری کمک کہاں سے آئے گی, میری مدد کہاں سے آئے گی. سیکنڈ ورس میں, دوسرے ورس میں, دوسری آیت میں جواب ہے, میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. یعنی پریشانی اور دکھ اور تکلیف میں خدا کی طرف نظر اٹھانا ہمارا خدا کے حضور میں اپنی پریشانی کو رکھنے کے بارے میں بیان ہے کہ جب ہم تکلیف اور دکھ اور پریشانی میں ہوتے ہیں, مایوسی میں ہوتے ہیں, تو ہم اپنی آنکھیں کس کی طرف اٹھاتے ہیں, ہم کس سے مانگتے ہیں, کس سے دعا کرتے ہیں. اور خاص طور پر جب یہ زبور لکھا گیا اس وقت پس منظر یہ ہے
کہ اونچے مقاموں کا ذکر ہمیں پرانے عہد میں ملتا ہے. اونچے مقام وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پر غیر قوموں کے لوگ، بت پرست لوگ اپنے بتوں کے لیے ٹیمپلز بناتے تھے. اگر آج بھی آپ قدیم جو پاکستان اس ایریے میں بھی، ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی دیکھیں تو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، جو ٹیمپلز ہیں وہ اونچی جگہوں پر بنے ہوئے ہیں. کوہ سیون پر ہیکل بھی بلند جگہ پر بنائی گئی. بتوں کی پرستش کے لیے لوگ اونچی جگہوں پر جاتے تھے، پہاڑوں پر جاتے تھے. اور یہاں میں نے کہا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری کمک کہاں سے آئے گی. آگے اور زیادہ کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی کیا ہے کہ میری کمک خداوند سے ہے، پہاڑوں پر بتوں سے نہیں ہے. میری کمک جو ہے دنیا میں دوسرے خداؤں سے نہیں ہے. میری کمک خداوند سے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. یہاں پر کلیئر کرتا ہے مصنف جو ہے، زبور کا لکھنے والا، اس بات کو اور واضح کرتا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگوں کا ایمان بھی وہی ہے جو میرے کے پہاڑوں کی طرف سے آتی ہے. لیکن پہاڑوں سے کس سے آتی ہے؟ پہاڑ سے نہیں آتی، کسی اونچی جگہ سے نہیں آتی، یا پہاڑ پر کسی بت سے نہیں آتی، پہاڑ پر کسی اور روح سے نہیں آتی. خداوند سے آتی ہے جو کہ زمین اور آسمان کا مالک ہے. یہ زبور کی پہلی 2 آیات ہمارے لیے تسلی اور ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہیں کہ جب مایوسی، پریشانی، دکھ ہو تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے، اور دینے والا کون ہے، مدد کرنے والا کون ہے، کمک، ہیلپ جو ہے وہ کدھر سے آئے گی؟ زندہ خداوند سے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، اور غیر قوموں کے لوگ بھی اٹھاتے تھے. پھر وہ کلیئر کرتا ہے کہ خداوند، پہاڑوں پر جو خداوند ہے اس سے میری کمک آئے گی، کیونکہ کوہ سیون جو ہے، ہیکل جو ہے، وہ بھی ایک پہاڑ پر. اور اس میں ایمان یہ تھا کہ ہیکل میں خدا کی حضوری ہے، خدا کی موجودگی ہے، اور وہاں سے میرے لیے مدد آئے گی. اور خاص طور پر یہ ایک بڑا 120 اور 121 زبور کی ترتیب جو ہے ہماری زندگی سے بڑی اس کا میل جوڑ ہے. زندگی میں جب بھی دکھ اور پریشانی آتی ہے، سینس آف نیڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کی جو ضرورت ہے وہ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، جب ہماری زندگی میں کوئی دکھ آتا ہے، جب ہماری زندگی تکلیف میں سے گزرتی ہے، جب ہماری زندگی میں ہار، ناکامی، مایوسی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اسی وقت ایمان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. سینس آف نیڈ جو ہے اور ایمان کی ضرورت جو ہے وہ اسی وقت انسانوں کو محسوس ہوتی ہے جب وہ دکھ میں سے گزرتے ہیں. جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس وقت اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کے پاس جانا ہے. ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم دکھ میں سے گزرتے ہیں. اور زبور 120 اور 21 اسی طرح سے انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہیں کہ جب دکھ محسوس ہوتا ہے زبور نویس کو تو 121واں زبور تسلی دیتا ہے. اور بہت دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب ہم دکھ میں سے گزرتے ہیں، تکلیف میں سے گزرتے ہیں، اس وقت خداوند کے پاس آنے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ شدت سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. زبور 3 جو ہے وہ اسی طرح کی ضرورت کو بیان کرتا ہے. 3 زبور اور اس میں 4 آیت میں لکھا ہے، میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے. یعنی دکھ اور تکلیف ہی بعض اوقات ہمیں خدا کے پاس لانے کا سبب بن جاتی ہے. یہ دکھ اور تکلیف جو ہے وہ ہمیں ایمان میں مضبوط کر دیتی ہیں. زبور 66 ہم گاتے ہیں، تایا تو اجیا سانو جی میں روپے متایا، تو نے ہمیں ایسے تایا، تو نے آگ سے ہمیں ایسے تایا جیسے چاندی کو تایا جاتا ہے. زبور 66 ہمیں اسی طرح کے ایمان کے بارے میں بتاتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب دکھ میں سے گزرتے ہیں تو ہم خالص بنائے جاتے ہیں، ہم مضبوط کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہو کر اپنی آنکھوں کو خدا کی طرف بلند کر سکیں، خدا کی طرف لگا سکیں کہ خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، وہ ہماری مدد کرنے والا ہے. اور زبور نویس کا یہی ایمان تھا کہ ہیکل میں خدا موجود ہے، خدا کی حضوری ہے، اور اس سے میری مدد آئے گی. اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح اسی
बात को जो हैकल में खुदा की हुजूरी और खुदा के जलाल के बारे में यहूदियों का, इसराइल का अकीदा है, उसको पूरा करता है। यूहन्ना की इंजील का पहला बाब खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से खुदा के जलाल के इंसानों के दरमियान आने का बयान करता है। इसराइल ये ईमान रखती है कि हैकल कोहे सयून, कोहे मुकद्दस जो है, जो पाक पहाड़ है, जहां पर खुदा की हुजूरी और खुदा का घर है, वहां पर खुदा का जलाल है और खुदा की मौजूदगी है और वहां से मदद आएगी। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, उसकी पहले बाब में हम ये देखते हैं बार बार जिक्र किया गया है यीशु के जिस्म अख्तियार करके इस दुनिया में आने का और खुदा के जलाल के आदमियों के दरमियान आ जाने का जिक्र है कि खुदा का जलाल जो है यीशु के वसीले से इंसानों के दरमियान है और उसकी मदद इंसानों के दरमियान मौजूद है। वो मदद जो पहाड़ों से आती है, वो मदद यीशु के वसीले से इंसानों के दरमियान ईमानदारों के साथ मौजूद होती है। हम खुदा का शुक्र करते हैं यीशु के वसीले से खुदा का हमारे दरमियान आ जाने में ईमान मजबूत हो जाना, क्योंकि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु के वसीले से ये ईमान हमारे दिलों में मजबूत है कि खुदा हमारे साथ आ गया। ज़बूर नवीस कहता है कि मैं पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, वहां से आएगी। हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु के वसीले से उसकी मदद हमारे साथ है, क्योंकि यीशु के वसीले से खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हम अपने साथ पाते हैं। हमें किसी पहाड़ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आज भी बहुत से लोग पहाड़ों पर जाकर, वो कॉन्सेप्ट है कि पहाड़ों पर अलग ही में जाकर चिल्ला काटा जाए, लोग बुलंद जगहों पर जाते हैं, लेकिन मसीही ईमान एक मुनफरिद तालीम देता है और हमें मजबूत करता है कि यीशु के वसीले से खुदा की मदद मेरे और आपके साथ मौजूद है और हमें यीशु के पास आने की जरूरत। और ये मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 7वें बाब लिखे है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमें किसी दूर जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं वीराने में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु के वसीले से खुदा की मदद हमारे पास आ जाती है, हमारे साथ रहती है और वो हमारी हिफाजत करता है। इस ज़बूर का जो मजमून है वो भी यही है कि खुदा हमारा मुहाफिज है। ये ज़बूर यही सिखाता है। ज़बूर 121 हमें बार बार तीसरी आयत, 5वीं आयत, 6ठी आयत, 7वीं आयत, 8वीं आयत, हर तरह में, हर बात में खुदा की हिफाजत का जिक्र है कि खुदा हमारी हिफाजत करता है। 3री आयत से शुरू हो जाता है कि वो तेरे पांव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, देख इस्राएल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। ये हमारे ईमान को एक और नई शक्ल देता है। जब हम कमजोर होते हैं, तकलीफ में, मायूसी में होते हैं, तो बाज़ औक़ात हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं खुदा हमारे साथ है या नहीं, पता नहीं खुदावंद हमारी तरफ देख रहा है या नहीं। लेकिन ये आयत हमें सिखाती हैं कि तेरा मुहाफिज न ऊँघेगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, इस्राएल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। ज़बूर 44 और उसकी 23वीं आयत में एक शिकायत खुदा से ज़बूर नवीस करता है, ऐ खुदावंद जाग तू क्यों सोता है। यानी ज़बूर नवीस ज़बूर 44 में जब दुख में है तो वो ये सोचना शुरू करता है कि शायद खुदावंद सोता है। ऐ खुदावंद जाग तू क्यों सोता है। वो शिकवा करता है अपनी मुसीबत में। और ये एक इंसानी फितरत है, इंसानी सोच है जो नेचुरल है, फितरी है। इसमें कोई ऐसी, हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि वो शख्स जो ऐसा जिसने सोच लिया है वो शायद बहुत ही बड़ा गुनाहगार हो गया। ये नेचुरल है कि बाज़ औक़ात हम जब दुख में होते हैं तो हम इंसान होते हुए घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि खुदावंद तू क्यों सोता है, तूने क्यों हमारी तरफ ख्याल नहीं किया, तूने हमारी तरफ नजर क्यों नहीं की, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वाहे मेरे साथ क्यों ऐसा होगा। बार बार हम लोगों से पूछते हैं, हम बाज़ औक़ात मुझे तजुर्बा होता है, लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा होगा। बाज़ औक़ात अपनी जाती दुआ में इंसान खुदा के साथ खुद ये गिला करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। यहां पर भी ज़बूर 44 में ये कहता है खुदावंद जाग तू क्यों सोता है। यानी वो तकलीफ में है तो वो गिला कर रहा है, खुदावंद तू देख क्यों नहीं रहा। लेकिन ये यहां पर ये आयत कहती है तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, वो हर वक्त देखता रहता है। यहां पर पहले दूसरी आयत में लिखा मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा।
یعنی ہمیں خدا کے پاس آنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، خدا کے پاس آنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، لیکن اب خدا کا رسپانس کیا ہے، خدا کی نیچر کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے، وہ ہر وقت جانتا ہے کہ اس کے لوگ کس حالت میں، کس تکلیف میں مبتلا ہیں، کس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ شاگردوں اور یسوع کے درمیان مقدس مرکز کی انجیل کے 4 باب میں بھی ہوا۔ مقدس مرکز کی معرفت پر لکھی گئی انجیل اور اس کے 4 باب کی 35ویں آیت لکھی گئی، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلے، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یسوع سو رہا، انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یہاں پر بھی شاگردوں کے ایمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاواڈول ہوا، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا تو سوتا ہے، تو جاگ، دیکھ، ہم تجھے فکر ہی نہیں ہے کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو جا، تھم جا، پس ہوا بند ہو گئی، بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیا تم اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ یہاں پر یسوع نے اپنے شاگردوں کی سرزنش کی، کیوں ڈرتے ہو؟ کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ میرے ساتھ رہ رہے ہو، میں معجزات کر رہا ہوں، تم دیکھ رہے ہو کہ کتنے بڑے بڑے معجزات ہو رہے ہیں، اور تم میرے ساتھ رہ رہے ہو اور میں تمہیں ہلاک نہیں دوں گا؟ تم اب تک کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیا اب تک بھی ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر کر آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ ابھی تک بھی کلیئر نہیں ہے شاگردوں کے ذہن میں، یسوع کی پکچر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ مسیحا ہے۔ وہ ان کو اپنے معجزات سے، کاموں سے، باتوں سے دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تعلیم سے بتا رہا ہے، پیشین گوئیوں کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ میں وہی ہوں مسیحا جس کے لیے وعدہ کیا گیا، جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس معجزے کے ذریعے سے بھی اس نے اپنی ایک قدرت کو ظاہر کیا کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، نیچر بھی اس کا حکم مانتی ہے، یعنی وہ خداوند ہے، وہ خدا ہے، اس کے پاس خدا کی قدرت ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس قدرت کا تجربہ شاگرد ابھی تک کرنے سے قاصر ہے۔ تم اب تک ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم بھی سوچتے ہیں کہ شاید خداوند ہمیں دیکھ نہیں رہا، وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ہماری طرف ہی لگی ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے دیکھتا ہے، وہ سنبھالنے کے لیے دیکھتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ سوتا نہیں۔ انسان کو سونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ محفوظ رہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں 6ٹھی آیت بھی اسی طرح سے خداوند تیرا محافظ ہے، پھر اس میں محافظ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 7ویں آیت یعنی یہ پورا زبور جو ہے وہ خدا کی انسانوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے محافظت کو بیان کرتا ہے کہ وہ بچاتا ہے، وہ محفوظ رکھتا ہے، خدا ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، ایدل سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور خاص طور پر ہم یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی دعا دیکھتے ہیں کہ یسوع نے خاص طور پر یہ دعا کی اپنے شاگردوں کے لیے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 12ویں آیت اور پھر اس کے بعد 15ویں آیت ہم دیکھتے ہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ یہاں پر یسوع خدا سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے میں نے ان کی حفاظت کی۔ پھر اس کے بعد 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ خدا اور جو زبور میں نے دیکھا کہ وہ ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ یہاں پر یسوع دعا کرتا ہے کہ ان کی شریر سے حفاظت کر، ایول سے تو حفاظت کر۔ اور خاص طور پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایمانداروں کو شیطان دکھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تمہارا مخالف ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو، شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو
फाड़ खाए। यानी हमारा मुखालिफ कौन है? इब्लीस। ईमानदारों का मुखालिफ शैतान है, खुदा का मुखालिफ शैतान है, खुदा के लोगों का मुखालिफ शैतान है, ताकि खुदा के लोगों को ईमान में कमजोर करे, वो फिसल जाए, उनका ईमान कमजोर हो जाए, वो ईमान से भटक जाए, वो उस राह से हट जाए जिस पर वो जा रहे हैं। उनकी ताकत जो है, ईमान की जो ताकत है, वो कमजोर हो जाए। लेकिन यीशु ने दुआ की कि इनकी उस शरीर से हिफाजत कर। मैं जितनी देर उनके साथ रहा, मैंने हिफाजत की। खुदावंद हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ है, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये दुआ की, और इसकी ईमानदारों को जरूरत है। ईमानदारों को हिफाजत की जरूरत है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें जरूरत है, हमें मुहाफजत की जरूरत है। जब हम कमजोर होते हैं तो फिर हमें पता चलता है हमारी ताकत क्या है। जब हम दुख में आते हैं, जब हम दुख में गिरते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि हम कितने की ताकतवर है। पहले तो हमें ताकत ही ताकत नजर आती है, अपने आप को हम बहुत मजबूत समझते हैं। लेकिन जब कुछ मसला आता है तो फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, अभी भी हमें किसी और मदद की जरूरत है। तो उस वक्त जब हमें ये एहसास हो कि हमें मदद की जरूरत है, तो ये जरूर हमें ये सिखाता है कि हमारे लिए खुदावंद की मदद मुहैया होती। और रोम के खत में पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बातें लिखते हैं। रोम के खत के 8वें बाब की 31वीं आयत बहुत मजबूत आयत है, बहुत पावरफुल आयत है। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया। इफ गॉड इज विद अस, हु इज अगेंस्ट अस? अगर खुदा हमारे साथ तो कौन हमारा मुखालिफ है? ये हमारे ईमान को और मजबूत कर देता है कि खुदावंद जो है वो हमारे साथ है, तो फिर कोई भी हमारा मुखालिफ जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी तकलीफ, परेशानी, दुख हम पर हावी नहीं हो सकती। और आगे उन परेशानियों का भी जिक्र किया गया रोमी खत के 8वें बाब की 33वीं आयत से। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी उठा, खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शफाअत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? इनमें से कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा इसलिए नहीं कर सकती कि खुदावंद हमारी तरफ है, खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम इस ईमान में मजबूत हो सकें कि खुदावंद हमारी मुहाफजत करता है, वो हमारे साथ, वो हमें फिसलने नहीं देता, हमें आजमाइश में गिरने नहीं देता, हमें खड़ा रखता है, मजबूत रखता है। कोई ताकतवर भी हो, बड़ी ताकत के साथ लड़ रहा हो, अगर उसका पांव फिसल जाए, कुश्ती अगर आपने कभी देखी हो, कबड्डी देखी हो, तो उसमें बड़ा ताकतवर भी अगर उसका पांव उखड़ जाए, स्लिप हो जाए, तो वो गिर जाता है, हार जाता है। तो यहां पर लिखा है कि वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। यानी हमारा खुदावंद जो है वो हमें शिकस्त से बचाता है। हमें इस तवक्कल में, भरोसे में आगे बढ़ने की जरूरत है और खुदावंद से मांगने की जरूरत है। जैसा ज़बूर नवीस ने कहा कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है। इस आयत को हमेशा हमें अपने दिल में रखने की जरूरत है कि मेरी मदद जो है वो खुदावंद से है, वो मेरी हिफाजत करेगा। चाहे वो आमदरफ्त हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो मुखालफों के हमले हो, चाहे वो मेरा कोई फर्ज हो जिसको मैंने अदा करना है, चाहे मेरी कोई जिम्मेदारी हो, या कोई भी काम या इरादा जिसको मैंने किया है, उसमें खुदावंद मेरे साथ। आई एम दुआ के लिए इसमें कुछ खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे पास जिंदा खुदावंद का ईमान है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें चुन लिया, तूने बरगजीदा किया, तूने हमें अलग कर लिया ताकि कोई हम पर नालिश ना कर सके, कोई हमारा मुखालिफ कामयाब ना हो सके, हमारा मुखालिफ इब्लीस जो है वो कामयाब ना हो सके, वो पता ना पा सके। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तू हमें मजबूत कर, यहां पर मौजूद हम में से हर एक को छू, ताकि हम इस ईमान और भरोसे में मजबूत हो सकें कि तू हमारा मुहाफिज है, तू हमें बचाता है, तू हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद तू हमारे साथ हो, एक एक को छू और मजबूत कर। हमारे खौफ, हमारा डर यीशु के नाम से जाता रहे, ताकि हम ये तवक्कुल और भरोसा कर सकें
कि तू हमारे साथ है, तू जागता है, तू अपनी आंखें हमारी तरफ लगाए रखता है, तू हमारी तरफ देखता रहता है, ताकि तेरे लोग महफूज रहे। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हदीस से पहले हम एक बपतिस्मे की रस्म है, उसको अदा करेंगे, फिर उसके बाद हम हदीये के लिए गीत गाएंगे। आगे आ जाए आप। मैं आप दोनों से कुछ सवाल करूंगा, आप इनका जवाब मुझे हाँ में देने। क्या आप खुदा को अपना और अपनी औलाद का खुदा मानते हैं? क्या आप ये संजीदगी से वादा करते हैं कि अगर खुदा आपको और आपकी औलाद को जिंदा रखे तो आप उन्हें खुदावंद की तालीम के मुवाफिक तरबियत देंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि आप अपने बच्चों को निजात दहिंदा की तरफ फेरेंगे और इनके साथ और इनके लिए दुआ करेंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि अपने खानदान में बराबर खुदा की बंदगी करेंगे और अपने बच्चों के सामने अपनी दीनदारी का नमूना दिखाएंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि इनकी निजात के लिए हर मुमकिन वसीला इस्तेमाल करेंगे? आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और जो वादे इस खानदान ने ईमानदारों की मौजूदगी में खुदा की हजूरी में किए हैं, दुआ करेंगे खुदावंद इनकी रहनुमाई करे ताकि ये इन वादों में कायम रहे और अपने बच्चे की ईमान में तरबियत कर सकें। इसी तरह इस पानी की तकदीस के लिए भी दुआ करें। खुदा काबिल मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मुमकिन किया कि तेरे बच्चे तेरी शुक्रगुजारी करते हुए और तेरे बेटे यीशु की तालीम के मुताबिक बेटे को तेरी हजूरी में ला सके, ताकि तेरी कलीसिया में शामिल होने के वसीले से उन बरकतों का वारिस ठहरा सकें जिनका वादा तूने अपने लोगों से किया है। खुदावंद जितने वादे इस खानदान ने तेरी हजूरी में किए हैं, तेरे पाक रूह के वसीले से इन वादों में ये कायम रहे, ताकि अपने बेटे की तरबियत तेरे कलाम की तालीम के मुताबिक कर सके। इस पानी के लिए भी खुदा दुआ करते हैं, इसकी तकदीस कर, ताकि खुदावंद इसके वसीले से जब हम बपतिस्मे की रस्म को अदा करें तो ये बपतिस्मे की रस्म हमारे इस बच्चे के लिए बरकत का बायस हो और खुदावंद कलीसिया में शामिल होने के वसीले से ये बेटा उन बरकतों का हकदार ठहरे जिनका तूने वारिस कलीसिया को ठहराया है। मसीह यीशु के नाम से आमीन। अबीर तुझे खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर मतवज्जो फरमाए और तुझे सलामती बख्शे। खुदावन तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावन तुझे अपने घराने के लिए और इस कलीसिया के लिए बरकत और खुशी और इज्जत का बायस बनाए। आमीन। खुदावन की तारीफ में हम गीत नंबर 140 गाएंगे। गीत नंबर 140, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जाए। इसी के साथ हम अपने हदीये भी खुदावन की हज़ूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 140।
आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात के लिए दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और इन हदिया जात को तेरी हजूरी में लाते हैं। हम सब मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस काबिल किया कि हम तेरी हजूरी में आ सके और खुदावंद तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटा सके। इन हदिया जात को कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी खुशहाली दे, ईमान की मजबूती दे और जिंदा कलीसिया बना और ये बख्श दे कि खुदावंद कौमी सतह पर तेरे बेटे यीशु की मुनादी और यीशु की खुशखबरी के लिए अपना किरदार अदा कर सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। से मेरी मदद के लिए आ गए। जाएंगे इसके पास लगा, यीशु है जिंदगी, मौत से डरता है वो ही पास, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रोमानी, जिंदगी के फानी, बख्शिश अजीब राहे सलीम, ले लो तुम क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है,
मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी याद में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो आए। इस वास्ते जो भी नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। और आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोदा और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद इसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेश कीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। खुदावंद इस रोटी और शीरे की दुआ करते हैं तो इनकी तकदीस कर, ताकि इस रोटी को खाने और शीरे को पीने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हम अपनी जिंदगी से कर सकें और तेरी मेज से एक नई जिंदगी के साथ वापस लौट सकें और अपनी जिंदगी से यीशु के नाम को जलाल दें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को यह देकर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का कादर होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ। अभी हमारे जो बच्चे हैं, अशर्स हैं, वो आपको गाइड करते जाएंगे और आपने अपनी अपनी बारी से आगे आते जाना है ताकि यहाँ पर रश ना हो और सिर्फ एक लाइन जो है वही उठकर आगे आए। और अपने बाएं हाथ को अपने ऊपर रखना है और बाएं हाथ पर एल्डर साहबान होस्ट को रखेंगे और दाएं हाथ से आपने खाना है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। जैसे हाथों से अपने सवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलाम
उसने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा तो मेरा गोश्त है। जीवन की ज्योत जलाऊं, जैसे जले ज्योत तेरी। जीवन की ज्योत जलाऊं, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच तेरी। मुझे मेरी जानो मेरी तुमको मेरे मेरी जानो मेरी तुमको मेरे यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए,
जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। यीशु ने ये बातें कफन घूम के एक इबादत खाने में कालीन देते वक्त कही। कोई ऐसा शख्स जो सामने नहीं आ सका तो बता सकता है। अस्कर साहब को प्लीज जरूरत है। अस्कर डैनियल साहब का हाथ का दर्द अलग। आप कोई गीत गाएं ताकि हम इंतजार कर रहे हैं इसको आ गई इसको टीचर्स को शामिल कर रहे हैं। ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो बेटियां वॉलंटियर्स हैं संडे स्कूल में, उनका इंतजार कर रहे हैं कि सब शामिल होंगे। और अपनी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे नबी यीशु मसीह की नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदार और मुबारक जमात हैं दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सिवा उम्मीद की जा सकती अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत रोकनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में शामिल रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशकश से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सबको किया करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम और दरबार होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते हो, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते हो, तेरा जलाल जाहिर करते हैं।
और तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बदले बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में खड़े होकर मिलकर शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर पे खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।